Let's talk about कि एक product development कैसे हम करेंगे उसकी. The quality of your product will tell you if the customer will come back to you to buy it the second time. Business in 1 million rupees. He should take that as a example and work for it. I will place a 2 to 3 lakh marketing campaign जिससे मुझे orders आना शुरू हुए बेसिकली. आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि यार मेरे 10 लाख जो लगे हैं मुझे 10 लाख वापस मिलेंगे. हो सकता है फिर आपको 6 लाख मिले, 7 लाख मिल जाए. Exactly. But if I am selling pens, I don't need to be an expert in pens. opportunities are going to come your way. It is you who have to catch them. ठीक है. अब वो कैच किस तरह करना है? You have to be always ready. You can't be comfortable in a mentally. You can't be Kamran Akmal. First of all, what product would you start and what will be the process of product development and practical implementation to it? And how much budget do I have? Let's have that on the second phase. Let's talk about कि एक product development कैसे हम करेंगे उसकी. जो भी आपके ज़हन में क्या आता है? I would say if I was to summarize it in 5 things, it's very similar to what you mentioned. ठीक है. For me, as I always say, a business plan is probably the most important thing before you start. उसमें उस business plan में ऐसी 5-6 चीज़ें कौन सी हैं जो सबसे ज़रूरी होंगी. Now again, whether that's an online business or a conventional business, whether you're doing retail, but essentially वो सारी वही चीज़ें हैं जो आपने भी mention की हुई हैं. You have to identify your product. I, by the way, don't believe that you need to be an expert in the product itself, right? If I'm selling t-shirts, I'm not an expert in, textiles, for instance. I just need to know that this is the type of textile that I'm okay to sell. If I am selling pens, I don't need to be an expert in pens, but I need to know the basic things. But yeah, like I think food if you're selling food, you need to be an expert in food, but as a salesperson, I just look at the sellability of the product, right? Makes sense. In the market. So the product that can sell, right? अब e-commerce पे आप अक्सर औकात जब आप product hunting करते हैं, like a lot of people who've done Amazon, a lot of people who've done things on Shopify, sold things on Shopify. Sometimes you identify a product that has sellability, which could be a kitchen-based product, like कपड़े लटकाने की तार, right? That's not a kitchen-based product, but कपड़े home utility products. अब उसमें expert नहीं हूँ, but मुझे थोड़ी बहुत ही knowledge आ गई है कि अच्छा इसको कौन use करता है और मैं कहाँ बेच सकता हूँ. So you identify a product. I think the majority of your spending should be on marketing. ठीक है. So marketing should be a intense or a very big part of your business plan. ठीक है. You should have a platform, a very easy way to take orders and fulfill them. ठीक है. So same thing you said around how आप कैसे orders deliver कर सकते हो और आप कैसे orders ले सकते हो. फिर है customer service. ठीक है. It's part of fulfillment as well, but किसी का कोई issue है या किसी ने कोई आपको feedback देनी है तो आप किस platform पे या किस channel से वो ले रहे हो. फिर एक और आपने बात की थी packaging के बारे में. अब depending कि आप किस तरह का product बेच रहे हो, again if it's t-shirts, if it's food based, if it's something else, if you are saying that I am selling a luxury item, ठीक है. I'm selling the best quality t-shirt, for instance. ठीक है. ठीक है. और वो आती है एक लिफाफे में सिर्फ प्लास्टिक के, तो फिर आपको ये तो नहीं फील होएगा ना कि ये लग्जरी आइटम है. तो उसकी पैकेजिंग जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए. सो पैकेजिंग नीड्स टू बी वर्कड ऑन. इट्स पैकेजिंग आई गेस इज sort of part of marketing as well. You add value to it. Yeah. And then I think the last thing, which I think you didn't mention this, but I'm sure you've done it as well, are strategic placements and strategic partnerships. ठीक है. Yes, definitely. Again, वो तो एक लेटेस्ट स्टेज में आ जाता है. उस प्रोडक्ट पे नहीं, बट वो आपके बिजनेस प्लान का पार्ट होना चाहिए ना. आपको पता होना चाहिए कि इवेंचुअली जब मैं ये फेज हिट करूं तो कहाँ जाके मैं अपना मैसेज अपने प्रोडक्ट के बारे में एम्पलीफाई कर सकता हूँ. ठीक है. क्या वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद कंपनीज हैं, क्या वो अब फॉर इंस्टेंस इफ यू सेल फूड, देयर इज ऑब्वियसली द पोटेंशियल ऑफ selling into large corporates that have events, caterings, corporate orders, etc. If you are selling a product that is more
क्या कहते हैं, लाइक अ टॉयलेटरी और मोर लाइक अ टी शर्ट. टॉयलेटरी की मुराद की परफ्यूम है या यू नो कोई फेस वॉश है, इस तरह की चीज़ें. तो उसके लिए आप इन्फ्लुएंसर्स टारगेट कर सकते हो. बट या strategic partnerships and placements are also very important. And surprisingly or unsurprisingly, this is also part of your marketing plan. So, You know, what I mean to say is marketing plays a very big role. Maybe sometimes even more than the quality of your product. The quality of your product will tell you if the customer will come back to you to buy it the second time. But marketing जो है वो आपको at least one time buys बहुत ज़्यादा लेके दे सकती है. और आपका शुरू में एम ये है obviously कि आप दोनों करो. Right? कि आप क्वालिटी भी डिलीवर करो और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वन टाइम बाइस पे जाओ ताकि आपकी कस्टमर रिटेंशन होए. दैट कम्स फ्रॉम क्वालिटी. Exactly, and I think the actual customer is when he comes back and buy it again. So that's the customer retention. Ajay, so you know, I understand what you're saying, and I think we both are on the same page. Definitely, आपके experience के हिसाब से, as you said, you know, you should not be so much experienced या expert on the product, but definitely product to product differ करता है चीज़. Food का definitely different है, you know, other products can be different. You know, I have a challenge. You know, let's take it as a challenge, and I'll do it as well. You know, that challenge is, yaar, I am going to give you a bracket of, let's say, 1 million rupees, 10 lakh rupees. And you want to start a business today from home. How will you do it? Micro manage it, micro budget it, and you know, you will make sure that it succeeds. So if somebody who's watching this today and wants to start his own business in 1 million rupees, he should take that as a, you know, example and work for it. आप क्या कहते हो? And what will be यार, that? I wish कि मैं रोज आप जैसे लोगों को मिलता जो मुझे 10 लाख देने के लिए तैयार होते हैं. ठीक है. तो सिंस मैं नहीं मिलता और सिर्फ आपने ऑफर किया तो चले मैं आपको बता देता हूँ. बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ. राइट. और इसी के अंदर चैलेंज एक्सेप्टेड. चैलेंज इज एक्सेप्टेड. मैं ये तो पहले कहे ना सर. यस, चैलेंज एक्सेप्टेड. मैं आपको उसका पूरा एक प्लान देता हूँ. बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ बेसिकली कि लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डज एनीवन वांट टू मेक मनी एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू वेल्थ क्रिएशन. राइट. ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट बेसिकली. या स्टेप 1 होता है कि आप पैसों के लिए काम करते हो. ठीक है. चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस से पैसे कमाते हो, ये वो, क्योंकि इवेंचुअली आप अपनी पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना. दूसरा है कि आपके पास अब आपने काम कर लिया, आपने बिजनेस कर लिया, आपके पास पैसे आ गए थोड़े बहुत और वो आपके पास बन गया कैपिटल. ठीक है. अब उस कैपिटल को आपने करना है इन्वेस्ट. ठीक है. तो इस पॉइंट पे हम खड़े हैं जहाँ पे आपने मुझे 10 लाख दे दिए और मैंने अब डिसाइड करना है कि मैं इस कैपिटल को इन्वेस्ट करना है. पर आपके पास 10 लाख है ना. देखिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम होम. हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ बिल्कुल. बट अब जिस बंदे के पास 10 लाख होते हैं उसने डिसाइड करना होता है कि यार ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. किस तरह की इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ. उसमें यह है कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है लो रिस्क जहाँ पे मुझे 10 लाख लूज़ नहीं करने और मैं खुश हूँगा कि अगर मुझे वो 10 लाख में 2 लाख प्रॉफिट मिल जाए साल के एंड में. ठीक है. उसमें मैं सेविंग्स अकाउंट खोल सकता हूँ. क्या मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ और मैं कहता हूँ यार अच्छा मैं 10 लाख के स्टॉक मार्केट पे शेयर्स ले लेता हूँ. ठीक है. उससे शायद रिलेटिवली सेफ रहेगा अगर मैं अच्छे शेयर्स लूँ. उस पर भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली. अब वो आउटसाइड फैक्टर्स पे चले गए ना आप. बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ पैसिव अर्निंग बिकॉज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और वो कंपनी कैसा चल रही है और उसका स्टॉक कहाँ जा रहा है और उसके क्या कहते हैं डिविडेंड्स आपको कैसे मिल रहे हैं. फिर ऑब्वियसली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आती हैं कि यार मैं सोना ले लूँ जिसमें मैंने हरकत कोई नहीं करनी. ये सारी वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं बस आपने कर दी और बैठ गया ना. खैर हरकत करनी है क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि आप बाइंग और सेलिंग कब करोगे. ठीक है. राइट. जहाँ पे डिटरमिन होता है कि आप पैसे कितने बना रहे हो या बना रहे हो कि नहीं बना रहे. राइट. बट जो आप मेरे से पूछ रहे हो वो है कि एक्टिव दिस इज नॉट अ पैसिव इनकम. आप मेरे से पूछ रहे हो कि एक्टिवली मैं क्या कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. राइट. सो नंबर 1 था वर्क टू मेक मनी, पैसे बनाओ. नंबर 2 था कि मैं पैसे से पैसा मेरा कैपिटल बन गया, मैंने उसको इन्वेस्ट करना. नंबर 3 था कि मैं उस पैसे को कंपाउंड करूँ, अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड करूँ और उस पैसे से और पैसा बनाऊँ. ठीक है. हम खड़े हैं स्टेप 2 पे. मुझे आपने अगर 10 लाख दिए,
ठीक है, और मैंने अब एक्टिव बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए उससे, मुझे 3 लाख भी नहीं चाहिए, मुझे 4 लाख भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साल के एंड में उसके 25-30 लाख. ठीक है, ठीक है, मुझे ट्रिपल करने हैं वो पैसे. बट ट्रिपल के साथ यही है कि मुझे हाई रिस्क काम करना पड़ेगा. हाई रिस्क काम इज स्टार्टिंग एनी बिजनेस, राइट? बिल्कुल. तो based on my research and based on my interests and my passions and based on my experience as well, मैं स्टार्ट करूँगा एक बिजनेस प्लान बनाना टी शर्ट्स बेचने का. ठीक है. ठीक है. एक क्वेश्चन है मेरा. जी. यू नो, आई सॉरी टू कट यू ऑफ, बट डोंट यू थिंक दैट्स अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट एट द मोमेंट? यार सैचुरेटेड मार्केट्स का कभी कभी जो बेनिफिट होता है ना, ठीक है, वो ये होता है कि उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी. मेक सेंस. देयर आर पेइंग कस्टमर्स हु आर विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट इन दैट. They just need more options. You're giving them new quality or you're new either design. giving them better quality, which could come in better designs, or better quality of the fabric, right? It really depends कि आपका marketing plan क्या है ना, और वो आप किस तरह से उसको market कर रहे हो. तो उसमें मैं आता हूँ एक सेकंड. और दूसरा ये है कि शायद आप better quality, जिस तरह मैंने पहले भी बोला है, कम प्राइस में दे रहे हो. ठीक है, राइट. अब मैं ये a lot of people like to buy Nike की कॉपीज. बिल्कुल. ठीक है, वो भी खरीदते हैं ना लोग. लेते हैं तो वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि they feel the exact क्योंकि same value उनको वैल्यू मिल रही होती है for less amount of money. कम पैसे दे के. ठीक है. बिल्कुल. दे डोंट केयर कि वो सुपीरियर प्रोडक्ट नहीं है और ओरिजिनल फ्रॉम या स्टोर. ओरिजिनल नहीं है. बट अगर उनको ये फॉर देम इट्स इनफ कि यार ये सेकंड कॉपी है और ये अच्छा लग रहा है तो मैं पहन लूँ. ठीक है. तो टी शर्ट या किसी भी टाइप ऑफ क्लोथिंग में हर तरह का कंज्यूमर बैठा हुआ है, क्योंकि सब ने पहननी है टी शर्ट. ठीक है. You just have to find your niche, and I'm okay with saturated markets. Actually, for people who are trying to start a new business, I actually I advise people to go into a market that is saturated because It already that already exists. has paying customers ना. अगर मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, ठीक है, और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम और इतने पैसे नहीं है कि मैं एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाऊं. ठीक है. और वो बेचने की कोशिश करूं, बिकॉज एजुकेटिंग पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ मनी, राइट? इफ आई वॉज टू कम अप विद अ कम्प्लीटली न्यू वे ऑफ ब्रशिंग टीथ, राइट, कि ये टूथब्रश नहीं है, ये एक मशीन है, आप अपने मुंह में डालें और आपके ऑटोमेटिक दांत ब्रश हो जाएंगे. ठीक है. उसकी एजुकेशन और उसकी मार्केटिंग में मुझे 10 लाख से बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे. मेक सेंस. ठीक है ना. So तो you मैं start something that बहुत already कोई exists. इनोवेटिव सोल्यूशन में नहीं जा रहा. मैं जा रहा हूँ, मुझे देखे ना, मेरा रीज़न है मैंने पैसे ट्रिपल करने हैं अपने. ठीक है. तो मैं वो चीज़ करूँगा जो मुझे पता है कि काम Makes शायद sense. कर लेगी. मेक सेंस. सो आई विल गो इनटू टी शर्ट्स. ठीक है. As part of my business plan, I will probably go into a niche which is somewhat towards the luxury quality side. I'm not going into designs. I know that there's a market out there of people who would want to just buy very good quality t-shirts, which are plain. Black, White. blue, white. डार्क कलर्स जो होते हैं. Dark होएं, light होएं, but Plain t-shirts की there game is a है. market for plain t-shirts which are well fitted, which you know, Definitely I buy it. which feel good. Exactly. मैं भी खरीदता हूँ. ठीक है. और obviously इस तरह की कंपनीज बेचनी है टी-शर्ट्स. बिल्कुल. ठीक है. जो मुझे गैप इन द मार्केट नज़र आता है वो ये है कि वो कंपनीज बेच तो बहुत फिट रही हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत फिट है, बट आई थिंक उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है. जो अभी ठीक है. मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है. जी. ठीक है. उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा आइडिया अब मैं उनको तो नहीं मैं फेमस कर सकता ना. वेरी गुड. तो कंपटीशन को देखना बहुत ज़रूरी है ना आपका. प्राइसिंग. यू हैव टू सी कि वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं. ठीक है. ठीक So है. you know now you've decided to start a t-shirt business. Exactly. So The first step would be. the first step would be I'm gonna go to Faisalabad and Sialkot. ठीक है. Why these two cities? Because that's where our textile hubs are. And I would like to identify top quality t-shirt vendors. आप t-shirts में कौन से type of fabric को choose करेंगे? यार मैं जो अब again this is all subjective, right, based on what I'm trying to do, but this would be a mixture of cotton and spandex. ठीक है. ठीक है. जो कि आपकी बॉडी को अच्छी तरह फिट करे और थोड़ी एक बटरी फीलिंग दे आपको. ठीक है. It's kind of an active wear. एक्टिव वेयर टाइप. ठीक है. ठीक है.
बट इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइफस्टाइल. अच्छा, आप गए फैसलाबाद इंसियाल को, मैंने कर लिया वेंडर्स आइडेंटिफाई, मुझे कॉस्टिंग का पता चल गया, मुझे पता चल गया कि कितने में कितना मुझे मिलेगा ये वो. और लेट्स से मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, मैं 35 तरह की टी शर्ट्स नहीं बेचना चाह रहा, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सिर्फ 5 या 4 कलर से. ठीक है, लिमिटेड रखना है मैंने. ठीक है. और मैं उसके लिए आया 20 या 30 सैम्पल्स. ठीक है, 20-30 सैंपल्स आप लाएंगे. ले आया मैं. ठीक है. अब उन 20 या 30 सैम्पल्स पे मुझे बनानी है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे ये फॉर अ बताइए, मार्केटिंग प्लान. मुझे ये बताइए, 1 मिलियन के फंड में जब आप सैंपल्स ला रहे हैं, वुड यू बी पेइंग समथिंग फॉर Yes, of सैंपल्स? course I'm going to be paying That's something. paid, right? Yes, So that's approximately what is the I'd budget? say बहुत भी मैं देख लूँ तो 30 या 40 हज़ार के 30 या 40 हज़ार from 1 million you're willing to pay for samples, Yes, and one should do 50,000 that. even, You 50,000 think let's say ठीक है, तो that is going to be 5%, right? 5% आपका सैंपल में चला गया. 5% आपका सैंपल्स में चला गया 50,000. ठीक है, Now you're 50,000 left with चला गया. 950. क्योंकि मुझे मैं सिर्फ एक बंदे से तो नहीं लेके ठीक है. परफेक्ट हो जाएगा ना. मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है. तो मैं आया वापस, मैंने उसका बेसिक सा मार्केटिंग प्लान बनाया, मैंने वो सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ लोगों में, उनसे फीडबैक लिए. वो ठीक है. 50 सैम्पल है मेरे पास, तो मैं 50 लोगों से फीडबैक ले सकता हूँ. अब जो मेन बात आती है, ठीक है. जब मेरे पास आइडेंटिफाई हो गए कि अच्छा यार ये वाला वेंडर है, इतना चार्ज करेगा, और ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने यूज़ करना है. ठीक है. उसके ऊपर मैं बनाऊंगा अपनी पूरी ब्रांड की थीम, उसकी ऑरा, उसकी स्टोरी. ठीक है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ एक लग्जरी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, प्रीमियम फैब्रिक्स, वो वाली गेम दे रहा हूँ मैं. I have a question here. You know, because you have good experience in it. जी. You're taking 30 pieces of, let's say, samples from different vendors. Yeah. You're paying 50,000 for it. How will you finalize the quality and the colors? Like उन samples को आप या distribute करेंगे या हाँ. लोगों को, या उसकी basis पे कोई फोटो शूट कराएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे? ये सब all of the above basically. You will do that So- with samples. Yeah, So what will be the budget for proof of concept spending from 1 million? almost nothing. ठीक है. Almost nothing. That would Right. be why? Because I would know people who I am gonna give samples to and get feedback from them. I'm And also you- giving them you- a free shirt, right? And you're gonna expect something like they're gonna make some video out of it as well. नहीं, अभी कोई वीडियो नहीं बना रहा. ठीक है. अभी Sample है, just सिर्फ feedback. सैंपल है, मुझे फीडबैक चाहिए कि अच्छा ठीक है है, कि नहीं है, ठीक तुम है. पहनोगे कि नहीं, कितने पैसे दोगे इसके So बारे में. you're still intact with 950. 9,50,000 मेरे You're पास. still intact ठीक with है. it. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, ठीक है. बट अभी तो मेरा खर्चा स्टार्ट ही नहीं हुआ. 50,000 कुछ नहीं है. ठीक है. मेन गेम आएगी जब मैं लोगों को पैसे दूंगा. आई विल नॉट डू दिस माई सेल्फ. आई विल पे समवन टू क्रिएट अ ब्रांड. You'll pay somebody to create a brand. मैं उनको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ठीक है. ये स्टोरी है, ठीक है. इस तरह की क्वालिटी में. आई एम टारगेटिंग पीपल हु वुड पे टॉप डॉलर या टॉप रूपी फॉर क्वालिटी टी शर्ट्स, राइट, प्रीमियम मटीरियल्स, एंड गो मेक मी मार्केटिंग प्लान अराउंड दिस. उस तरह का मार्केटिंग प्लान कैन टेक अप टू 2 लाख रुपए. ये आप उनको अपना बजट बताएंगे? मैं बजट नहीं बताऊंगा, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि 1 लाख लग सकते हैं. नहीं. So what I'm telling you, देखिए, we have to be a little bit more precise about the fact that we have a limited budget. Yeah. So when you're making a marketing plan from some experts, they're Yeah. going to charge you approximately 200,000. Let's say 150 to 200,000 should be the budget in a person's mind. इतना तो होएगा. Makes sense? So आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, मैं आई एम ओके टू नॉट मेक द मार्केटिंग प्लान माई सेल्फ. आई वुड गो टू अ प्रोफेशनल. that's the best thing to do because you know that's going to make you क्योंकि वो that मार्केटिंग 3 ही million. जो आप है वो आपको वो 3 million ला के देगा. तो you know, तो let's वो- say when we are मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सेल्स का एक्सपर्ट हूँ, और उसके बावजूद मैं सेल्स का एक्सपर्ट होते हुए मार्केटिंग के पास जाऊँगा कि यार प्लान बना के दो. so you know now you're left with 700,000. यस. So marketing plan is done. अब मार्केटिंग प्लान वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. ठीक है. अभी तो उन्होंने सिर्फ मुझे प्लान बना के दिया. ठीक है. अब पॉइंट इज़ कि मुझे स्टार्ट करना है बेचना, ठीक है. राइट. सो आई विल गो अप टू, अब कितना मेरा 2.5 लाख यूज़ हुआ अभी तक. अभी तक इसमें- आप लग 3 lakhs यूज हो गया. 50,000 के सैंपल आए हैं और 2 लाख मैंने किसी को दिया कि यार मुझे मार्केटिंग. सॉरी, आपके 750 रिमेनिंग है उसके बाद मैं करूँगा फोटोशूट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. फ्रॉम द सैम्पल्स.
फ्रॉम द सैम्पल्स मुझे पता ना मैंने एंड कौन यू सी स्पेंड use अराउंड 40-50,000 ऑन इट. की। उसमें आप लगा दो, चलो 3 लाख चले गए, ठीक है. अब ये आपको शायद चुका दे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं यार इन्वेंट्री के बारे में तो ये बंदा बात ही नहीं कर रहा, ठीक है. ठीक है, ठीक है. मैं अभी इन्वेंट्री पे आया ही नहीं हूँ। मैं मार्केट टेस्ट करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर दूंगा, अभी मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है. ठीक है, और अगर तो ये 10 लाख ने 30 लाख होना है तो वो मुझे इधर ही पता चल जाएगा। ठीक सही है. है. मेक सेंस. मैं सोशल मीडिया कैंपेन रन करना इसका, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग कोलैटरल्स बन गए हैं, मेरे पास ब्रांड बन गया है, आई हैव इनफ टू डू फोटोशूट, आई हैव इनफ टू बेसिकली स्टार्ट सेलिंग, आई डोंट हैव द सैम्पल्स, आई डोंट हैव द एक्चुअली इन्वेंट्री। आई विल प्लेस अ 2 to 3 लाख मार्केटिंग कैंपेन जिससे मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए बेसिकली। So basically now you're left with 700,000 after the photo shoot, the marketing plan, या and the samples you've Yeah. bought. या और अब आपके पास 7 लाख रह गए. 7 लाख से आप कह रहे हैं कि मैं मार्केटिंग कैंपेन एड्स पे स्पेंड 2 करूंगा, से 3 लाख की मार्केटिंग कैंपेन करूंगा। हाँ, जिसमें एड्स हो सकते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सब जिसमें कुछ, ठीक जो है। भी, या आप कह रहे हैं फर्दर 3 लाख कर लेते हैं. हाँ 3 लाख कर लेते So हैं। you're left with 400,000. इससे लेट्स से मुझे आते हैं अगर मुझे 100 ऑर्डर आ जाते हैं लेट्स से, तो अब मैंने सिर्फ ऑल आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू गो बैक, ठीक है, मैंने अपना जहाँ से जो मैंने सैम्पल फाइनलाइज़ किया उससे इन्वेंट्री ली, ठीक है, और मैंने एक टॉप नॉच पैकेजिंग का इंतज़ाम किया, ठीक है. जो मेरे बकिया पैसे बचे हुए हैं उनसे 4 लाख है. 4 लाख से मैंने इन्वेंट्री ली, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया ना, मुझे 100 ऑर्डर आ गए, तो उनको मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं तुम्हें 15 दिन में ऑर्डर दे दूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट बैच है But ये। that's, I think, an issue because in textile या online हाँ. orders जो होते हैं, the maximum you can give them 3 to 5 working business days. That's fine, but this is my first batch, so it's fine. It's ठीक है. okay. ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे मिल गए हैं ना, अब तो मैंने देना है उन्हें सही अच्छा, है. आपको पैसे आ गए हैं इससे. पैसे, या उनको मैंने COD देना है या जो भी ऑर्डर आ गया है, मुझे पता है कि एक डिमांड एग्जिस्ट करती है इसकी। That's the point. So basically you created the demand. मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था ना बेसिकली, ठीक है. कि क्या मैं अगर 3 लाख के ऐड लगाऊंगा तो मुझे 100 ऑर्डर आएंगे कि नहीं, ठीक है। अब वो पहले ऑर्डर्स मैं शायद लेट फुलफिल कर लूँ, आई एम ओके टू डू दैट, ठीक है. ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ द मनी दैट आई हैव लेफ्ट आई विल ऑर्डर इन्वेंट्री टू fulfill those orders, ठीक है. एंड आई विल स्पेंड मे बी 1 or 2 lakhs ऑन पैकेजिंग। तो वो बकिया जो 4 लाख हैं वो पैकेजिंग इन्वेंट्री पे चले गए, और फिर मैंने फिगर आउट करना है कि मैं अब इनको डिलीवर कैसे करूँ ऑन द गो। जब मसला आएगा मैं तब उसको फिगर आउट करूँगा। ठीक है. At the same time, once this starts, and this is a unorthodox approach, I understand, Yeah, it makes sense. but this is how I would do it. So wisely spent. The best part was that you did not focus on inventory only, but it was the marketing No. plan. इन्वेंट्री यार देखो, जो मेन मैं देखता हूँ ना मसला जो है, पीपल विल फोकस ऑन सैम्पल्स, ठीक है. ठीक है। उनको सैम्पल अगर खुद पसंद आ गया, लेट से उन्होंने करा लिया, तो उनका अगला स्टेप ये है कि किसी के पास 10 लाख हैं, उन्होंने 50,000 के सैम्पल्स लिए, whatever, शायद 10,000 के सैम्पल्स लिए, तो अगला उनका स्टेप ये है कि अच्छा यार चलो 8 लाख की इन्वेंट्री मंगा लो, Exactly. ठीक है। उससे मसला ये होता है कि आपके पास अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपके पास कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, आपका मार्केटिंग का बजट नहीं है, और अब आप बेसिकली हसल कर रहे हो कि मैं किसी तरह एक आधी शर्ट बेच दूँ। So the catch point of this whole scenario was जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखें, और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि anything you're about to start on your own, the key point was not the product's quantity, it was the selling, कि आप उसको सेल कितना अच्छा कर सकते हैं. So basically you should be very good at selling. So what did I give? I think 60% of my money was in marketing and strategy and all of that stuff. Yes. And I think less than 20-30% was on inventory. 10% was on packaging. ठीक है. ठीक है, which is a lot given कि 10% है मेरे पैसों का, ठीक है. ठीक है। मतलब मैं 3 लाख की इन्वेंट्री के ऊपर 1 लाख लगा रहा हूँ पैकेजिंग पे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट नहीं मैंने फील देनी है ना उन्हें, प्रीमियम और क्वालिटी की। Once the cycle turns over and there's money to be generated, let's say 100 शर्ट्स बिकती हैं 4,000 रुपीज़ की, ठीक है, कितने हुए? 4,000 a piece. For 100 will be 400,000. 400,000, 4 लाख आ गया मेरे पास।
10 लाख में से 4 लाख आया ना, 10 लाख में 4 लाख आया ना, बट अब मेरे पास मुझे समझ आ गई है कि कैसे होना है। तो वो 30 लाख किस तरह हम ला रहे हैं? 30, था वो एकदम से तो नहीं आएगा ना यार, ये तो अभी पहला बैच है। ठीक है 4 lakhs पे अब मैं जा रहा हूँ सेम फॉर्मेट में। बट यू फोकसिंग मोर ऑन इन्वेंट्री नाउ। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन इन्वेंट्री बिकॉज आई नो देयर इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आई नो कि यार इट सेल्स। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मार्केटिंग में कितने पैसे डालूंगा और उसका रिटर्न क्या है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया ना मुझे। एट दिस पॉइंट अगर मुझे लगता है कि मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है और 4 लाख रुपए आर नॉट इनफ ठीक है फॉर मी टू गो एंड फुलफिल दिस, ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं 300 महीने के, और 4 लाख में तो इन्वेंट्री नहीं पूरी हो रही, ठीक है तो उस वक्त मैं जाऊंगा किसी के पास इन्वेस्टर ढूंढने कि यार शॉर्ट ऑर्डर्स मेरे सामने हैं, और आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो और मैं आपको परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज वापस दूंगा। एक ये है। दूसरा ये है कि अच्छा अब मेरे पास अगर रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मुझे ये सब कुछ करने की खुद ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मेरा 6वां महीना है, ठीक है, और अब टर्नओवर हो के प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो गई है, और अब एट द एंड ऑफ द मंथ मैं 5-6 लाख सेव कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स व्हेन आई नीड टू स्टार्ट एम्प्लॉइंग पीपल बेसिकली, डेलीगेट, सो दैट अच्छा यार अब पैकिंग करनी है, डिलीवरी वालों से डील करना है, ऑर्डर्स लेने हैं, कस्टमर सर्विस हायर करनी है, वहाँ पे मैं इसको स्केल करने के लिए ठीक है डेलीगेशनल टीम हायर करेंगे, टीम हायर कर लूँगा। मेक सेंस। एंड आइडियली ये मैंने आपको एक हवाई पूरा प्लान बताया कि ये सारी आइडियल सिचुएशंस हैं जिसके तहत आप एंड में आके सक्सेसफुल हो जाओ। बहुत बिजनेसेस नहीं भी होते, एक्सपर्ट्स भी अगर स्टार्ट करें नया बिजनेस तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं होती कि वो सक्सीड करे। डेफिनेटली the challenges I could face is that I spent all this money in marketing and my proof of concept was just bad. and it didn't work out. It didn't work. That's a possibility, but That is you a at least possibility. but you did not wasted the whole chunk of money हाँ, on buying inventory. मैं अब एक कमरे में 500 शर्ट्स के साथ तो नहीं बैठा हुआ ना, ऐसे ही क्योंकि वो 500 शर्ट्स ने खुद तो नहीं बिकना। आपने बेसिकली वो अंडरस्टैंड किया कि the market does not exist for these kind of things at the moment. Yeah, और it's basically what you need to verify is क्या मार्केट है या नहीं है। बिल्कुल। That's okay. ऑर्डर्स अगर लेट भी आए, आप पहला बैच, you'll be surprised, people are very understanding if you tell them that I've just started this and it's going to take me a little bit longer to fulfill your order। जिस तरह आपने कहा यार हम ओ ब्राउनीज एक नया बिजनेस है, Exactly. और अभी हम नए मार्केट में आए, तो अभी हम आपको ऑर्डर फुलफिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके लिए आप उनको कुछ वैल्यू ऐड दे दो थोड़ी सी कि यार नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मैं 25% डिस्काउंट दे दूंगा। बिल्कुल There's ठीक है। always like ways to go around that, but the point is it's for the survival of your business. Now that's what comes sense. first. Makes sense. So why don't you tell me? आपने मुझे चैलेंज दिया है? Yes. ये लो चैलेंज वापस लो। Yeah, first of all आपको मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, और अब आप मुझे बताएं। Yeah, देखिए, so first of all I take this challenge. Yeah. In a certain way, definitely it might be a little different, but you know mine was very unorthodox. I'm very I sure understand. a lot of people will disagree कि यार that's the point. तुम कैसे कर रहे हो ये That's the inventory point. के बगैर, और मार्केटिंग में इतने पैसे लगा रहे हो ये वो। That is the point, to हाँ. understand, because a lot of people think that if they have inventory they can do business out of it. Yeah. क्योंकि आप घर से जब काम स्टार्ट कर रहे हो आपको लगता है कि यार बड़ा आसान है, कोई ओवरहेड्स नहीं है, बट मैं आपको ये बात अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँ, इफ़ यू स्टार्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड यू आर अबाउट टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट, it's a bigger overhead because it does not exist already in the market. It does not have a market face. लेकिन जब आप रिटेल में एग्जिस्ट करते हैं ना, मैं एक किसी ऐसे बंदे के साथ बैठा हुआ था जो कि मॉडर्न बिजनेस का एक्सपीरियंस बहुत था बिजनेस में, कोई 50-60 साल का बंदा था, बट उसने मुझे एक बात की और बड़ी ऐसी उर्दू में बोला उसने कि यार आपका अपना टिया होना चाहिए। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड टिया क्या होता है? एग्जैक्टली ये आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने कहा सर आप अगर मुझे थोड़ा बता दें, मैं अभी नया है ना ऑनलाइन बिजनेस में आया था, हम घर से बना के बेच रहे थे, तो उसने मुझे कहा यार आपका कोई मार्केट में स्टैंडिंग होनी चाहिए और कोई प्लेस होनी चाहिए, रिटेल होनी चाहिए। तो उससे पहले उसने मुझे कहा कि आपका कोई पावा होना चाहिए, कोई आवाज होनी चाहिए, कोई आवाज होनी चाहिए, या आपकी जगह होनी चाहिए मार्केट में।
तो मैंने कहा सर टिया क्या होता है? जिस तरह हम जब शुरू में जब ये लॉजिस्टिक्स का काम स्टार्ट करे थे तो हम लोग मिलते थे मार्केट में लोगों को, जिसमें एक बंदा होता था उसको कहते थे नाइक, वो होता था उस मार्केट का मेन बंदा लॉजिस्टिक्स का, ठीक है, और वो कहते थे इस बंदे की आवाज़ है, ठीक है, मतलब ये पापी है उसमें। हाँ। सो टिया का कॉन्सेप्ट ये है कि यू शुड हैव अ प्लेस वेयर पीपल शुड नो दैट दिस बिजनेस एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ, ठीक है, आपकी जो कमर्शियल स्पेस होती है ना जहाँ पे आप बैठते हो, जब आपने कन्वेंशनल बिजनेस करना है या कोई ऐसा बिजनेस करना है, इवन इन द मॉडर्न एरा, कि अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट IT बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट एनी अदर थिंग, यू नो यू शुड हैव अ मार्केट प्लेस जहाँ पे लोग आपसे आके मिल के डील्स कर सकें। ठीक है। This is what he meant at that point of time. It took me a lot of time to understand it, but he was right. प्रेजेंस है ना बेसिकली, Presence क्योंकि उसका एक फ़ायदा ही होता है, सॉरी मैं आपकी बात नहीं, it's fine, it's fine. बट उसका जो द रीज़न दैट पीपल बिलीव इन दैट स्टिल इज़, हमने बात की ऑनलाइन बिजनेसेस की, हमें नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो हमें शर्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। Exactly. ठीक अब है। ऑनलाइन शर्ट का टिया क्या है? नहीं है ना कोई, यही तो बात है ना, मार्केट, डिजिटल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम, रिव्यूज और ये वो ठीक सारा है, वो बेसिकली मीडिया बनता आपकी प्रेजेंस उस पे आ गई। है। बट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो जो मैंने स्टडी की, आई थिंक मैंने कहीं सेपियंस की किताब में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था मुझे अब याद नहीं है, बट वो कह रहे थे कि यार बैंक्स में पैसे लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बैंक कहीं भाग नहीं सकता, वो बैंक की बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, बैंक ने उधर ही होना है, ठीक अगले दिन है। भी। सो लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो चुका अगर एक है। बंदे ने रेडी लगाई हुई और उस रेडी पे वो कह रहा है कि आप मुझे अपना सारा पैसा रखवा दें और मैं आपको साल के एंड में इतने दूंगा, 12% दे दूंगा, तो वो कोई रखेगा? तो आप उसको नहीं बिलीव करेंगे, कभी भी नहीं। उसका टिया नहीं है। Exactly. So you know that is what. So what I will do, you know, if you give me 1 million rupees और आप मुझे कहें कि एक बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट हंट करने के लिए सोचूंगा और मैं मार्केट को स्टडी करूंगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। आपने मुझे बताना है प्रोडक्ट कौन सा है, मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, मैं पहले प्रोडक्ट हंट करूंगा कि अच्छा। प्रोडक्ट क्या वो चीज़ है जो कि मार्केट में अभी द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हाँ, और किस डोमेन में मैं करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट रिस्क के साथ मैं करना चाहूँगा, जिसमें मैं देखूंगा कि एक वो पेरिशेबल आइटम ना हो, ठीक है, उसकी लाइफ लॉन्ग हो, इट कैन सेल ओवर द ईयर्स, इट शुड बी एवरग्रीन जी। प्रोडक्ट। जब आप इस तरह की डोमेन अपनी पहले डेवलप करते हैं ना, पहले क्लासीफाई करूंगा मैं अपने आप को, क्लासीफाई करके मैंने क्या किया, एवरग्रीन होना चाहिए, इट शुड बी यूज्ड ओवर द होल ईयर, सीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे पास क्या ऑप्शंस आ जाएंगी? मेरे पास आ जाएंगी टेक्सटाइल में, फिर टेक्सटाइल के अंदर जिस तरह आपने टी शर्ट्स का, आई विल गो टू अ नीश देन। इफ़ यू आस्क मी, माई इंटरेस्ट वुड लाइक यार ज़्यादातर लोग, ठीक है, दे फोकस अबाउट हेल्थ, दे फोकस अबाउट यू नो जिम, दे फोकस अबाउट डूइंग एक्सरसाइजेज, बट in all the situation they want to look good as well. ठीक है, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल wants to go to the gym, he wants to look in a way कि मैं वो जिम का अटायर पहनूं। Why? Because gym attire has become a new trend even if you're not going to the gym. That is what my experience and my observation tells me. So I will focus the gym wear. How will I do that? सबसे पहले मैं जाके मुख्तलिफ gyms को visit करूँगा यार, if there are women, there are men, what kind of shirts they are wearing, what kind of the trousers they are wearing, or gym tights they are wearing and all, and I will try to see the best the best product out of it कि यार अगर मेरे पास, क्योंकि जिम अटायर में यू हैव अ लॉट ऑफ रेंज, यू कांट से कि बस एक शर्ट और एक पैंट है या ट्राउजर है, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव अ लॉट ऑफ बिग रेंज। सो I'll limitize to the most worn product in the gyms. I will observe the markets कि markets में लोग अगर जिम अटायर को एज अ पहन के आ रहे हैं, एज अ एक फैशन शो कर रहे हैं कि यार ये हमारा फैशन भी है साथ साथ, तो वो उसमें क्या वो प्रोडक्ट है जो कि पहन ही रहे हैं एट दैट टाइम। सो पहले तो मैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा एंड आई विल विजिट डिफरेंट प्लेसेस। I will physically go to gyms, I will physically go to the markets, I will physically go to the cafes where people come of that mind, जिसमें वो लोग जिम के बाद आके कॉफ़ी शॉफीज़ और गप शप लगा रहे हैं। I will go and visit those places.
अभी मैंने कोई पैसा नहीं स्पेंड किया, अभी मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप की क्लासिफिकेशन करूँगा, द फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग। सेकेंडली, जब मैंने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया कि मैं कहता हूँ कि यार अगर इफ़ आई हैव टू गो एंड स्पेशलाइज इन women wearing gym tights, you know, what kind of gym tights, and then what is the classification in that as well, क्योंकि it all depends on the product that they are wearing on their body, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है आपकी स्किन के साथ अगर टच कर रहा है, जिस तरह आपने कहा कि शर्ट की बटरी फीलिंग होनी चाहिए, तो इसी तरह जब कोई भी बंदा या बंदी एक टाइट पहन रहा है जिम के लिए, तो इट शुड फील कंफर्टेबल फॉर देम एज वेल। सो माई रिसर्च वुड बी, द सेकेंड स्टेप वुड बी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट will be liked by people who are going to wear it. और वो कैसे होगा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली इंटरनेट रिसर्च से होगा, फिर मैं कुछ उसकी बेसिस पे सैम्पल्स डेवलप करने की बात करूँगा, बट वो मटेरियल क्या है, कि वो स्पैंडेक्स है, वो इलास्टीन है, या और कोई ऐसे मटेरियल्स आए हैं मार्केट में जो कि जो लोग पहनने के लिए रेडी हैं फॉर वेयरिंग इन द जिम्स एंड बाय द वे द फैक्ट कि मैंने आपसे पूछा और आपने मेरे से पूछा और हमारे पास हमें ऑलरेडी टेक्सटाइल के बारे में पता है। यस, उसका मतलब है कि ऑब्वियसली रेगुलर बंदे को नहीं पता होता, तो ज़रा कुछ बताएं कि स्पैंडेक्स और इलास्टिसिन और कॉटन ये क्या चीज़ें हैं सारी। बेसिकली ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फैब्रिक होता है ना, दैट यू यूज़ फॉर योर शर्ट्स, फॉर योर पैंट्स, इनकी परसेंटेज होती है ऑफ कॉटन, पॉलिएस्टर, इलास्टीन, स्पैंडेक्स, फिर एक आर्टिफिशियल लेवल ऑफ फैब्रिक में आ जाता है। वाई? बिकॉज ये स्ट्रेचेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जब आप प्योर कॉटन की बात करते हैं ना, कॉटन इतना स्ट्रेचेबल नहीं होता, बट कॉटन की मज़े की बात ये होती है कि वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। कॉटन में एक और इशू आता है कि उसकी जो आयरनिंग है वो रिंकल फ्री नहीं होता, इसीलिए जब लोग पॉलिएस्टर को ऐड करते हैं परसेंटेज, इज टू मेंटेन दैट बैलेंस कि वो कम से कम रिंकल में जाए। स्पेशली फॉर जिम कॉटन इज नॉट फुली मॉइस्चर विकिंग, ठीक है। सो उस पे आपको अगर स्वेट आ रही है तो फौरन नजर आएगी। तो पीपल मोस्टली फोकस ऑन अ वेयर, ऑन अ फैब्रिक दैट इज गोइंग टू हेल्प देम, नॉट फोकस ऑन स्वेट। वाई? बिकॉज जब आप स्वेट कर रहे हैं, आपकी स्किन के साथ फैब्रिक टच हो रहा है, देन इट शोज योर स्किन एंड देयर आर अदर थिंग्स अटैच्ड टू इट, सो पीपल आर लिटिल बिट कंसर्न्ड। सो द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट फैब्रिक दैट इज यूज्ड फॉर जिम वेयर इज स्पैंडेक्स, ठीक है। स्पैंडेक्स स्ट्रेचेबल है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जा सकती है, वो प्रिंटेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आपके टॉप्स बन सकते हैं, बॉटम्स बन सकते हैं, यू कैन इवन यूज इट फॉर योर आर्म्स, उसके कुछ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं टू अवॉइड इफ यू आर रनिंग, इफ यू आर रनिंग इन द सन, पीपल वेयर ओनली दोज हैंड थिंग्स एज वेल। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन यूज फॉर दैट, बन सकते हैं उसे। सो पहले तो मैं प्रोडक्ट की, जब मैं जिस तरह मैंने कहा ना, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाओ, मेरा ये मानना है, जब आप घुस रहे हो तो पहले तो अपने आप को फुल रिसर्च करो। जब आपने रिसर्च की कि यार आज मैं कहता हूँ कि मैंने एक जिम ट्राउज़र और जिम शर्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है, मैंने अब डिसाइड कर लिया कि यार ये दो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इसके अंदर 3 कलर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। आई कैन सेल इट। कितने इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा आइडिया और आपका आइडिया है वो दोनों टेक्सटाइल, हैं वो दोनों कॉटन और स्पैंडेक्स के, बट टारगेट मार्केट डिफरेंट है। That's the beauty of it. बात है। देखिए, that's the beauty. मैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूँ और आप जा रहे हो जिम के लिए, ठीक है। लाइक रेगुलर वेयर के लिए मैं जा रहा हूँ और आप जिम के लिए जा रहे हो। अब वाई? बिकॉज मेरा ये मानना, दोनों की मार्केट्स डिफरेंट है, डिफरेंट है। मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड नाइकी और पूमा और एडिडास और ये जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, या इससे भी बड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स अभी मार्केट में आ गए हुए हैं। अब कौन बंदा जिम के लिए, हर बंदा तो नहीं 10,000 की शर्ट अफोर्ड कर सकता, नहीं ले सकता। और फिर उसी में दूसरी बात आता हूँ जो कि हमारी फिर सिमिलर होगी कि आप डू यू थिंक यू आर गोइंग इनटू अ सैचुरेटेड मार्केट एज वेल? I think that I am going in a soon to be saturated market. अभी भी उसमें गुंजाइश है, क्योंकि देखिए हमारे मार्केट में, हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में अभी तक किसी ने $1 बिलियन हिट नहीं किया इस मार्केट में। मैं समझता हूँ ये मार्केट उस वक्त तक इसमें गैप है इन जिम वेयर। देखिए $1 बिलियन नहीं तो एटलीस्ट $1 बिलियन टर्नओवर नहीं हिट किया किसी ने लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स में। हो सकते हैं जो एडिडास और नाइकी है जो कि ऑपरेट हो रहे हैं उन्होंने हिट किया हो, बट कोई पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि मुझे इधर आज बता दे कि जिम वेयर में उन्होंने 100
crores क्रॉस किया है, लेट्स से 100 million क्रॉस किया है रेवेन्यू इन अ ईयर एनुअल? आई डोंट थिंक सो. 100 million is 10 crore? नहीं, 100 million नहीं, सॉरी 1000 million क्या लेना, 1000 million. 100 crore. 100 करोड़. 1 अरब किसी ने क्रॉस किया? I don't know a brand, but I also don't know their financials. So नहीं, इट सीम्स वेरी. अब देखें, अगर कोई 1 अरब 1 बिलियन क्रॉस कर रहा है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, फिर वो IPO पे होता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि देखिए गुंजाइश है मार्केट में, बाइंग है, यू नीड टू प्रेजेंट. सो व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल. अब मैंने जब डिसाइड किया कि यार मैं जिम वेयर में आना चाह रहा हूँ, मैं एक नीश को टारगेट करना चाह रहा हूँ, अब मैंने क्या टारगेट करना है? मैंने कलर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जो मैं टॉप्स और बॉटम्स के ला रहा हूँ, लोग उसको देख के खुश हों, उसको देख के वैल्यूबल फील करें, और ब्रांड एक ऐसा बने कि उनको लगे कि यार हमने कोई ब्रांडेड चीज़ पहनी है. हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट? सो सबसे पहले जिस तरह आपने कहा मैं सैम्पल जाके खरीदूंगा, मैं भी ये करूंगा, बट मेरी सैम्पलिंग की टेक्निक इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट. मैं शायद वेंडर्स के पास जाने से पहले मैं सैम्पल्स ऑर्डर कर लूँ फ्रॉम चाइना, क्योंकि वही चीज़ चाइना में भी बन रही है, वही चीज़ पाकिस्तान में भी बन रही है. बिकॉज मैं तो पहले ये भी रिसर्च करूँगा कि देखिए क्या वो प्रोडक्ट जो कि मेरे पास इंटरनेशनली अवेलेबल है, क्या वो पाकिस्तान में डेवलप हो रही है कि नहीं, कि मैं सिंपली चाइना पे डिपेंडेंट हूँ. सो व्हाट आई डू कि पहले तो मैं ये रिसर्च, तो आई नो दिस फॉर अ रीज़न कि यार येस, स्पैंडेक्स प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कैन बी टेलर्ड, कैन बी मेड हेयर इन पाकिस्तान. ठीक है, दैट्स अनडाउटफुल थिंग. फैसलाबाद भरा हुआ है, सियालकोट भरा हुआ है, बट स्पेशली सियालकोट इसमें वो करता है, स्पेशलाइज करता है. सियालकोट क्यों करता है? क्योंकि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो कि ज़रूरत है, और जिमवेयर इज़ वन ऑफ दो. सियालकोट में कुछ वेंडर्स हैं जो लोकल मार्केट में तो बेचना ही नहीं चाहते, वो बनाते ही सिर्फ क्योंकि दे नो, बिकॉज उनको डॉलर मिलता है. हाँ. ठीक है, उनको वो प्राइस मिलती ये है. मेरे साथ हुआ है. ठीक है, मेक सेंस राइट. सो वो, बट उनकी क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग इज गुड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड, दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो मैं पहले सैम्पल ऑर्डर कराऊंगा फ्रॉम चाइना. वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. अली एक्सप्रेस है, अली टेमो आ गया, टीमो जिसको आई थिंक पीपल आर कॉलिंग इट दीस डेज. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. मैं जिम टाइट्स ऑर्डर कराऊंगा, मैं वो ऑर्डर करके पहले अपने वेंडर की, मैं उसकी क्वालिटी फाइन चेक करवाऊंगा. मैं वेंडर के पास जाऊंगा, मैं डिज़ाइन उधर से निकाल कितने के. पैसे स्पेंड कर रहे हैं आप इस सैम्पलिंग पे? क्योंकि चाइना वाली सैम्पलिंग तो महंगी हो सकती है. नहीं, इट्स रीजनेबल. डिलीवरी कॉस्ट और नो, सो द प्रॉब्लम, द डिफरेंस इज, नहीं द डिफरेंस उसमें आ जाते हैं. जब आप इधर पाकिस्तान के वेंडर के पास जाते हैं ना, वो आपको शुरू में सैंपल बनाने का कहता है, जी मैं अगर वो प्रोडक्ट अगर आपसे 100 पीसेज लूँगा तो मैं आपको 1000 रुपये में दूंगा. तो वो कहता है कि अगर आप मुझसे सैंपल बनवा रहे हैं तो मैं आपसे 10,000 रुपये लूँगा सैंपल के, क्योंकि ये हम नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये है, इसकी पूरी कास्ट बनती है, इसका पूरा वो डिज़ाइन बनता है. ये उनकी बातें हैं. हाँ, वैसे तो बातें ही हैं, सस्ते में भी बनता है. देखिए वो एक्सेप्ट, वो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है. सो नाउ दे आर चार्जिंग फॉर सैंपल. मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आई विल ट्राई टू गेट एटलीस्ट 5 to 10 samples from China using these different platforms, and my target is going to be remain in 10 to 15,000. Let's say मैं 20,000 give कर जाता हूँ for samples because I know I can do it from there. और मैं जब वो सैम्पल ऑर्डर कराऊंगा, I know for a reason, और मैंने किया हुआ भी है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है because it's a product that is generated from, you know, it's an artificial fabric. ठीक है, काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल फैब्रिक है. ये कोई ये तो नहीं है कि जो कॉटन उग रहा है उससे बन रहा है. नो, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ये इसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है. तो वो जब बन रहा है तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ से. मैं जाता हूँ उधर वेंडर के पास, मैं कहता हूँ देखिए आप लोग मुझे सैम्पल मत दे, ये मैं आपके पास प्रोडक्ट लाया हूँ, मुझे आप ये बना के दे. वो मुझे कह सकता कि ये मैं नहीं बना सकता. देयर इज़ अ हाई चांस, क्योंकि इसके अंदर भी डिज़ाइंस है कि जब आप जिम वेयर में जा रहे हैं उसके अंदर मैश लगता है, उसके अंदर किसी पार्ट पे कुछ और प्रोडक्ट लगता है. यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि मैं बात कर रहा था बिल्कुल प्लेन चीज़ की, और आपके अब आ रहे हैं जिम के मैश वाली प्रोडक्ट्स जिसमें डिजाइंस हैं. ये ठीक है, अब देखिए वी हैव टू फॉलो अ लिटिल बिट ट्रेंड एज वेल बिकॉज पीपल वांट टू फील गुड वेयरिंग इट. ठीक है, सो मेरा टारगेट होगा थोड़ा एस्थेटिक्स को भी मैं देखूंगा. मैं वेंडर के पास, एक के पास गया, उसने कहा मैं इसमें ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. एक दूसरे के पास गया, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. तीसरे के पास कह रहा हूँ ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. मैं उनसे एक सैम्पल, मैं 3 वेंडर्स को फाइनलाइज कर दूंगा.
मैं उनसे कहूँगा आपको अब इसकी कोई कास्ट नहीं बनानी, ना आपको इसका कोई और वो बनाना है जो इसकी बेस के लिए डिज़ाइन होता है, आपको बस इसको कॉपी करना है। ठीक है, मुझे आप इस मिनिमम उसके लिए दे विल नॉट चार्ज यू मोर। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव टू डू ऑल द हार्ड वर्क डिज़ाइनिंग फ्रॉम द कंप्यूटर और फिर उसको लाइव लाना, क्योंकि नॉर्मली जब आप कंप्यूटर डिज़ाइन देते हैं वो कहते हैं ये सारा इसका 30,000 है। ठीक है। So, आप उनसे एक एक दो सैम्पल्स ले लें, हाँ, you will be covered in let's say 5-7,000, let's say 10,000. So आप 30,000 give up करके now you have 9,70,000. After a few weeks they're gonna get it delivered to you. ठीक है, ठीक है, आपको डिलीवर हो गया। आपने मटेरियल को चेक किया कि यार अच्छा जो मैंने मंगाया ना, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, दैट हैज़ कम फ्रॉम चाइना, और जो मैंने अभी इधर मंगाया क्या मैं ये सेल कर सकता हूँ, क्या ये इक्वल क्वालिटी के, ये थोड़ा सा कम है, ज़्यादा, ये सेलेबल है कि नहीं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? गो टू द जिम्स अगेन, जहाँ पे आपको पता है लोग मिलेंगे, आप उधर के लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप बताएं जेन्युइनली कि आई एम अ पर्सन, सेल्स पर्सन, खुद जाएं। यू नो, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप किसी के पे रिलाई नहीं कर सकते कि यार मैं एक बंदे को हायर कर लूँ, आप जितने पैसे हायरिंग पे लगा दें, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, उस वक्त तो उस ब्रांड की इमेज जो है वो टोटली आप पे डिपेंडेंट। ठीक है, सो आप जिम्स पे दोबारा जाएं, आप लोगों से बात करें, आप उनसे कहें कि यार if you allow me to talk to customers, I will do this, I want to get a feedback. If you don't allow me, आप उनसे कहें कि यार ये आप ये प्रोडक्ट लें, आप अपने दोस्तों फीमेल मेल जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड है आप उनको ये दें, टेक योर फीडबैक एंड गिव इट टू देम फॉर फ्री। आप सिर्फ देखिए फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है फॉर मी कि इफ यू हैव टू गिव। कितने सैंपल्स दे रहे हो आप? 10 samples कर लें, 10 samples is more than enough. आप 10 different लोगों को दें, people who are enthusiastic about exercise, people who are going to the gym, who are going out of, you know, let's say उनको मजबूरी है, उनका weight ज़्यादा है या उनके health issues हैं, so they want to go to the gym, आप उनको दें। आप make sure करें कि यार you get the feedback. And my target, जो मेरा standard कहता है, 95% should be the best feedback out of it. और उसमें एक्चुअली जो एक चीज़ मैंने भी नहीं मेंशन की वो ये है कि फीडबैक जो है वो सिर्फ for especially for athleisure or you know basically clothes, it shouldn't be just about how it feels. It should also be कि यार ये धुल के जब आती है तो तब उसका क्या हाल होता है, या इसका कलर तो नहीं उतरता, या इसका साइज तो नहीं छोटा होता, वो भी फीडबैक है। ये एग्जैक्टली देखिए, ये फीडबैक में इंपॉर्टेंट है। इट डजंट एंड कि यार जिम में पहने में कैसा लगा या लग कैसा रहा ये वो। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ना, यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी इट शुड कवर ऑल ऑफ दिस। सो माय स्पेंडिंग इन द स्टार्ट वुड बी ऑन रिसर्च, my spending would be on buying the samples, and let's say right now I have 9,50,000 remaining samples। आगे पीछे भाग दौड़ में, फ्यूल में ये चीज़ें लग जाती हैं, 15-20 हज़ार रुपये लग गए, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास 950 रह गया। आई केम अप विद यू नो फीडबैक, यार इसमें ये कलर्स होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मैश होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे अब सॉर्ट आउट हो गया, मेरे पास क्लियर पिक्चर आ गई है। ठीक है ना, मेरे पास आ गया। अब मेरे पास जो सैम्पल रिमेनिंग है, मैं उसमें से फाइनलाइज जो प्रोडक्ट्स करने हैं, मैंने जो डिज़ाइन करना है, मैं उसमें फ़ोटोशूट करवाऊँगा, वीडियोस बनवाऊँगा, फ़ोटोशूट्स करवाऊँगा, रील्स बनवाऊँगा। ये आपकी इनिशियल मार्केटिंग है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए? अभी यस, ये मैं पहले कंटेंट डेवलप करवाऊँगा, बिकॉज फॉर अ फैब्रिक वेयर, बिकॉज इट हैज़ टू बी देयर। और मैं एक पर्सन को, अगर मैं प्रोडक्ट फीमेल बेस करवा रहा हूँ या मेल बेस करवा रहा हूँ, आई विल हायर अ पर्सन हु मेक्स 1 वीडियो एवरी डे टॉकिंग अबाउट द शर्ट, टॉकिंग अबाउट द ट्राउज़र। ठीक है, और वो हर रोज़ करेगा और मुझे हर रोज़ वो वीडियो बनाएगा। लेट्स से इफ ही चार्जेस 1,000 रुपीज़ पर वीडियो, और इट शुड बी मोर देन, यू नो, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि यार आपने मुझे हर रोज़ एक वीडियो बनानी है, उसको पहनते हुए दिखाना है, उसके ऊपर बात करनी है कि यार ये कलर अच्छा है, ये कलर नहीं अच्छा, मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा कंफर्टेबल है, ये मैं एक्सरसाइज करता है, कोई बस मुझे एक 30 सेकेंड रील चाहिए एवरी डे। यूज़र UGI वीडियोज़ जिसको कहते हैं, यूज़र जर्नी वीडियोज़ जो होती हैं, वो मैंने बनवानी है। क्योंकि ये देखिए 2025 में हम हैं, वी आर नॉट इन लेट्स से 2017 एनी मोर। सो मैं 30,000 का बजट उसको दूंगा, 30 नहीं 50 कर लूँगा। ठीक है, राइट नाउ आई एम ऑन 9 lakhs।
अभी सिर्फ अभी आपने सिर्फ कंटेंट डेवलप किया और आपने सिर्फ सैंपल्स लिए, ठीक है, मैं 9 लाख और पे रह आपका गया, बंदा एक वीडियोस पोस्ट कर रहा है रोज, ठीक है, 9 लाख पे मैं आ गया हूँ, मैं उसके लिए प्रॉपर कमर्शियल एड भी बनवाऊंगा, उसके लिए मैं फोटोशूट्स भी करवाऊंगा, इसके ऊपर मेरा बजट जो नेक्स्ट होना चाहिए ना वो होना चाहिए 80,000 to 100,000, ठीक है, लेट्स कॉल इट 100,000, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको लॉन्च करना है मेरे पास एटलीस्ट 2 months का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, 2 months शुड बी माई बफर कंटेंट टाइम जिसमें ये चीज़ें सेल हो सकेंगी। तो मेरे पास अब कितने रह गए? ये आप कमर्शियल जो है खुद बनाएंगे या किसी को देंगे, आउटसोर्स करेंगे? डेफिनेटली इट हैज़ टू बी आउटसोर्स बिकॉज यू नो ये एक्सपर्टीज चाहती है और इसमें एक्सपर्ट बंदा ही हो तो वो कर सकता है। जिस तरह आपने कहा कि मार्केटिंग, आई विल गिव समबडी द मार्केटिंग, समवन हुज अ ठीक है, द मोमेंट यू हैव द कंटेंट यू हैव, अब आती है बात प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन की। प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन में आपके पास फिर 3-4 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक उसमें एड रन करना होता है, किन प्लेटफॉर्म्स पे ये डिसाइड करना है। दूसरा आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है। तीसरा आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप लोगों को किन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप को पार्टनर कर सकते हैं। इट हैज़ अ कॉस्ट बाय द वे, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं बात आखिर में आऊँगा, बट माई टारगेट वुड बी, पहली बात तो ये है कि हम लोग इसके ऊपर मार्केटिंग प्लान बनाएं कि हमारी इन्फ्लुएंसर कैंपेन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए और हमारा एड्स पे कितना स्पेंड होना चाहिए। तो हमारे पास स्पेंड होगा, देखिए अगेन, सो अगर मुझे आप 10 lakhs का बजट देते हैं ना, और मैं अपनी इन्वेंट्री के ऊपर हिसाब लगाऊं कि यार मुझे 10 lakhs एटलीस्ट रिकवर करने इसमें से, इस पूरे प्रोसेस में से मेरा टारगेट होगा 15 lakhs, ठीक है, ठीक है। टू बी रियलिस्टिक 15 lakhs मैं कहता हूँ कि मैं पूरा 1 million से 1.5 million रिकवर करूँ। मैं पहले अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करूँगा, ठीक है, कि यार मुझे कितने पीसेस चाहिए, मुझे कितने प्राइसेस चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मेरा एक शर्ट और एक ट्राउज़र इज़ बीइंग सोल्ड, शर्ट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर लेट्स से 3,000, लेट्स से शर्ट्स 3,000 की बिक रही है, ट्राउज़र बिक रही है 2,500 की, ठीक है। तो अगर हम एक एवरेज लें, हमारे पास सेलिंग होनी चाहिए 2,750 पर यूनिट, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2,750 इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ ईच यूनिट प्राइस, ठीक है, एवरेज पे। 2,750 को मैं 1.5 million पे डिवाइड करूंगा। सो मैं अगर आपके सामने इसको डिवाइड करूं, सो व्हाट इट विल गिव मी, it's going to be a little, you know, I'm being very micromanaging it, but that is how I would do. जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 15 lakhs में आती है बात। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 545 शर्ट्स बेचनी है, या 545 यूनिट्स बेचने हैं आपने, 545 यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है। अब 545 की जगह अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग करूं, मैं ये कहूं कि यार मैं 545 की जगह मैं 500 बेच देता हूं, ये भी बहुत है। कितने आ जाएंगे मुझे? 13,75,000, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मेरा फर्स्ट बैच से मेरा पर्पस होगा टू क्रिएट अ इकोनॉमिकल साइकिल एंड टू रिकवर व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। सो माय टारगेट इज टू सेल 500 शर्ट्स, ठीक है। 500 शर्ट्स की मैं इन्वेंट्री दूंगा। 500 शर्ट्स की 500 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? इफ आई एम सेलिंग इट फॉर 2,750, इट शुड कॉस्ट मी नॉट मोर देन 1,400 1,300। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। व्हाट्स योर मार्केटिंग स्पेंड ऑन इट? मैं मार्केटिंग के ऊपर आऊंगा, क्योंकि वो 1,300 तो आपकी कॉस्ट है उसकी, उसके अंदर मार्केटिंग की स्पेंड भी जाएगी ना। वो तो अगला बजट है ना, वो तो मैं देखो लमसम मैं आपको अभी बता दूं, तो 1,300 की अगर कॉस्ट आ रही है तो मेरा जो वो आ रहा है क्या कहते हैं, बजट फॉर इन्वेंट्री, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 600,000, ठीक है। अब आई एम लेफ्ट विद 200,000। जो 200,000 है ना, उसको नाउ आई विल आइडेंटिफाई इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि उसमें मैंने कैंपेनिंग कितनी करनी है और मैंने उसके अंदर इन्फ्लुएंसर के एड्स कितने रन करने। मेरा बजट होना चाहिए
इसके ऊपर देखिए, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आपका मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ऑफ होना चाहिए 60 to 70,000. द रेस्ट शुड गो ऑन एड्स. आप कह रहे हो कि आप 50,000 आपने लगाया सैम्पल्स पे, यस 50,000 आपने लगाया कंटेंट पे, कंटेंट Yes. क्रिएट करने Yes. में, जो आप बंदे को दे रहे हो कि रोज वीडियो बनाओ. उसके बाद 1 लाख आपने लगाया कमर्शियल बनाने में. बिल्कुल, विद कंटेंट जो कि स्टिल इमेजेस एंड एवरीथिंग. ठीक है. 6 लाख की आपकी इन्वेंट्री आई, उसमें से आपके पास बचे 2 लाख 10 लाख में से, जब ये सारा कुछ हो बिल्कुल. गया तो उसमें से आपने दिए 80,000 टू इन्फ्लुएंसर्स, उसमें आप मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स गेन करें. ठीक है, 20 देखिए मार्केट में देयर आर पीपल अवेलेबल जो कि 20-20 25-25 हज़ार रुपये में भी कर रहे हैं. जरूर. ठीक है, कुछ लोग शायद फ्री कर दें, आप उनको शर्ट दे रहे हो. और आप कह रहे हो कि आपके पास जो बकिया 1,20,000 बचेंगे उसकी आप मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे. एड्स. और एड्स में भी अब क्लासिफिकेशन है हाँ. कि आपने कितना मेटा एड्स पे करना है, कितना आपने लेट्स से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह टिकटॉक है उसको किस तरह करना है. फिर इसके अलावा आप एड्स की और कौन से, आई थिंक दीज 2 प्लेटफॉर्म्स आर मोर देन इनफ एट द मोमेंट. सो आपका बेसिकली जो टारगेट होता है ना वो ये होगा कि यार मैं इसको इस अमाउंट को रिकवर कर दूं. ठीक है, एंड पहले गो में मैं पहले बैच में से मेरी ये टारगेट होगी कि आप ये इसको इस तरह करें. बिल्कुल ठीक है. So this is what I think, one should, think about starting a business, but knowing one thing, क्योंकि fabric is a kind of a thing that is seasonal based. Spandex is a kind of a fabric that people mostly wear around the time, the whole year, in the gyms for other but उसके ऊपर वो लोग फिर है ना अपनी वो अटायर्स देखते रहते हैं. बट कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, कोई भी फैब्रिक बेस्ड प्रोडक्ट हो, यू नीड टू नो द सीजन. और आपने उस सीजन से पिछले सीजन में उसकी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट कर चुकी होनी चाहिए इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री में हमेशा डिलेज आते हैं. अगर आप समर बेस्ड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो यू शुड फाइनलाइज कि आपका दिसंबर में योर प्रोडक्ट्स शुड बी विद यू, because the next 2-3 months are going to take you to campaign, designing, shoots, content, uploading and everything. It is going to take that time. एक चीज में आपने पैसे नहीं डाले, बताएं. पैकेजिंग में. पैकेजिंग में क्यों नहीं डाले? अच्छा, so why my thinking is कि शुरुआत में because it's a product that people want to buy on a least amount of money. हाँ. ठीक है, सो आई विल नॉट वरी अबाउट पैकेजिंग इन दिस. हाँ, मैं इसमें ब्रांडिंग एक अच्छे से नाम की दे दूंगा. जो आपको पैकेजिंग है वो सिंपल प्लास्टिक में भी करके देता है ना, तो जब आप उसको TCS या किसी भी कोरियर सर्विस की करते हैं वो फ्लायर्स ऐसे फ्लायर्स में देता है कि वो उनको रीजनेबल तरीके से डिलीवर हो जाता है. ठीक है. राइट नाउ माई फोकस वुड बी टू क्रिएटिंग अ ब्रांड जो कि लोगों की प्राइस रेंज में एग्जिस्ट कर सके. वो 10-10 हज़ार का यूनिट ना कॉस्ट करे, वो 3,000, 2,500, 2,700 रुपये का कॉस्ट कर सके. तो आपकी जो 120K की एड्स हैं, आपके ख्याल में आप 500 ले आओगे उसमें से ऑर्डर्स? यार आई थिंक अगर 500 मेरी द मैक्सिमम अप्रोच है कि 500 आ सकता है. मैं अगर उससे भी कम कर दूं 300 आ सकते हैं. ठीक है, आप जब देखें ये गेम साइड बाय साइड चलती है, और इंटरनेट मार्केटिंग इज़ अ वेरी फनी थिंग एंड अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग इज़ वेल. कि अगर आपके प्रोडक्ट है और आपने उसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई है और आपकी किसी ने ऐड लगा दिया शर्ट पहन के और इसी टाइम पे आपने ऐड रन किया है, तो इट विल स्टार्ट हैविंग व्यूज़. सेकेंडली, उसमें अगर आपका व्यू अच्छा आ रहा है लोगों को कि यार अच्छा इस प्रोडक्ट को पहन के आई कैन फील गुड, दिस इज समथिंग पीपल विल बाय. thirdly, आपने अपनी जो मेटा एड्स को रन करना है, एंड फॉर दैट यू नीड अ बिट ऑफ लर्निंग इन योर माइंड कि आप पहले अपने आप को मेटा एड्स के कॉन्सेप्ट से खुद सीखें. देखिए मैं ये बात पूरी क्यों की है मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग आपकी अपनी भी होती है. सो यू शुड नो हाउ टू रन मेटा एड्स. It's not a big science. It's all about knowing the system, the technology that they've created. उसको थोड़ा समझे. YouTube, Google is filled with all data, filled with information. You can get educated. Only thing is if you're willing to do so. You can hire an expert, but definitely it's going to cost you a lot. फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि यार मेरे 10 लाख जो लगे हैं वो मुझे 10 लाख वापस मिलेंगे. हो सकता है फिर आपको 6 लाख मिले, 7 लाख मिल जाए. Exactly. But
फिर आप एक एक्सपर्ट हायर कर दे जो आपको 2-3 महीने के लिए ना ही चार्जेस यू अराउंड 200 to 300,000. People do charge that much amount of money. I know that. मैंने कई बार अप्रोच किया हुआ लोगों को. But what I'm trying to tell you कि देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका एक साइकिल चला, आपको इतने एटलीस्ट आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो गई है. डोंट वरी, थोड़े से ऊपर आ गए दैट्स गुड, इफ नॉट दैट्स फाइन. आप उस साइकिल को चलाने के लिए बात करें और फिर साथ साथ आप है ना उसको करें. 2,750 for a gym shirt or a trouser is the most conservative price I'm telling you right now. It costs generally I think Gym Armor sells shirts and trousers for up to 5,000. ठीक है. Yeah. अभी मैं बहुत कंजर्वेटिव प्राइसिंग बता रहा हूँ. यू कैन गो फॉर 4,000, यू कैन गो फॉर 3,000. द ओनली थिंग मैटर्स इज कि आपकी प्रेजेंस मार्केटिंग में किस तरह आ रही है. अगर इसको हम समराइज करें तो I think again both of us went into textile, very similar but very different at the same time. I think there were a couple of actually let's go through our processes. I think we spent almost the same amount of money in sampling. ठीक है. 50,000 आपने लगाया, 50,000 मैंने लगाया. उसके बाद आपने लगाया 50,000 और 1 लाख कंटेंट और कमर्शियल में. जिसमें मैंने कहा कि यार मैं इसकी जगह 2 लाख दूंगा एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को जो मेरा ब्रांड बिल्ड कर देगा. ठीक है. Which could be somewhat similar things, but also it would include website etc. ये वो ब्रांडिंग कंटेंट. ठीक है. आप उसके बाद गए 6 लाख की इन्वेंट्री लेने. ठीक है. जहाँ पे मैंने कहा कि मैं 6 लाख लगाऊंगा मार्केटिंग पे. ठीक है. I think that is the key difference between both of ours. That is true. क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दूँ. आई वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन द मार्केटिंग एस्पेक्ट टू क्रिएट द ब्रांड ऑनलाइन. ठीक है. Your way, again, there's no right way. That's possible. That's the difference is possible. Yeah. आपने कहा कि मैं करूँगा रिकवरी एक गो में और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ट्राई करूँगा कि वो एटलीस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिवर्स हो जाए. और मेरा ये प्लान बिल्कुल भी नहीं था. अगर ऑब्वियसली मैं 6 लाख मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ, 8 लाख तकरीबन मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ, 6 लाख तकरीबन मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ, तो मैं तो नहीं रिकवर कर सकता ना उसको एक ही उसमें. मेरा प्लान ये है कि मैं उसको ओवर अ फ्यू पीरियड ऑफ मंथ्स रिकवर करूँ जहाँ पे मेरा साइकिल भी चलता रहे. आई थिंक योर प्लान वाज आल्सो टू सेल 500 एट अ टाइम. या 500 or 400. I was okay with 100 to start and then incrementally grow from there. Because I also want to. I'm happy with less. जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि मुझे 2 बिलियन नहीं चाहिए, मुझे बस 20 मिलियन चाहिए. चलो, makes sense. Then one of the key factors I think which also differentiate our plans is, again, you might do it for cost saving. My plan, because मैंने सारी इतनी मार्केटिंग ब्रांड बन गया तो मैं तो पैकेजिंग बगैर नहीं रह सकता ना. बिल्कुल. तो मुझे तो 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा पैकेजिंग पे. बट एक जो मे बी यू कुड से ड्रॉबैक मेरे प्लान का था वो ये था कि इतने पैसे मार्केटिंग पे खर्च करके अगर मेरी इन्वेंट्री छोटी होगी और मेरे ऑर्डर ज़्यादा हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा. उसमें मेरे शायद लोगों को वेट करना पड़े. वेटिंग टाइम. बट आई एम ऑल्सो ओके विद दैट बिकॉज मेरे ख्याल से जब आपकी रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा होती है. ठीक है. कि आप कह रहे हो ना यार तो सोल्ड आउट रहता है हर वक्त, तो जैसे ही ड्रॉप आएगा मुझे चाहिए उसमें. उसके बाद मैं लिमिटेड ऑफर्स लगा दूंगा. बिल्कुल. ये वो ब्ला ब्ला. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेड वाज दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म्स and what platform to put an ad on and understanding meta ads. Absolutely. Because you need to put ads where you need to target people where they hang out basically. Mostly, right? Yeah. कि अगर आपकी audience Instagram पे, I think both of our audience is on Instagram and TikTok, right? And that's probably where we'll go, right? To put ads, and meta ads is obviously very important for Instagram and Facebook. So our strategies might be different, but the results we want are the same. Exactly. And that goes to show that basically there's not one way to do things. There's multiple ways to do things. There's multiple ways to. Exactly. And you know, I say this कि इससे भी और बेहतर भी approaches हो सकती है. ये तो हमने on the fly create किया. ये तो exactly run time पे what we could think of was something. तो मुझे बताएं next time आप on the fly कोई अभी तो बहुत टाइम हो गया, अब हमें मेरा ख्याल में रैप अप करना चाहिए. बट नेक्स्ट टाइम
किसके बारे में बात करनी है आपने? यार देखिए नेक्स्ट टाइम ये तो हम दोनों टेक्सटाइल खेला आज हमने. नेक्स्ट टाइम पे ही चैलेंज होना चाहिए. अच्छा, आप कह रहे हैं आप ऑन द स्पॉट डालेंगे मुझे? आई थिंक कि हम लोग को हर एपिसोड में एक चैलेंज लाना चाहिए. कि if somebody wants to start a business, but topic I think we should discuss about something digital. ठीक है. Related to IT. आप बेसिकली चाहते हैं कि मैं देखिए जब सो के उठूं तो मैं अरफात ना हूं, जब मुझे पता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं. नहीं, मैं सुबह उठूं और मुझे जिस दिन पता है कि मैंने आपसे मिलना है उस दिन मैं बोलूं कि यार मैं आज JF-17 हूं, मैं जंग में जा रहा हूं क्योंकि आज उमर ने चैलेंज फेंक देना मेरे ऊपर. बिल्कुल ऐसा. देखिए ऐसे ही होना चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहता है. ठीक है. कि देखिए आप मार्केट में, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. यू हैव एक्सपीरियंस दिस मोर देन मी. अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम योर वे. इट इज़ यू हु हैव टू कैच देम. ठीक है. अब वो कैच किस तरह करना है? यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी. यू कांट बी कंफर्टेबल इन अ मेंटली. यू कांट बी कामरान अकमल. यू कांट बी कामरान. यस, वो जितने कैचेस ड्रॉप किए. बटर फिंगर्स. बट you have to be ready. ठीक है. Every moment you should be ready. तो अब आपके नेक्स्ट टाइम पे रेडी रहना है कि हम क्या चीज़ थ्रो करेंगे और किस तरीके से उसको कैच करना है. मैं देख लूँगा. We will see you. You have to catch it. हाँ. तो on that note, I think we've had a very in-depth discussion on informative as well, on how to not just do your product designing, your product hunting, but also the practical implementation. We heard about Umar and his experience in starting a food business and the 4 or 5 things that he thought were the most important for him to not just choose the product, but also go through proof of concept and then eventually practical implementation and how to scale that. And then we talked about कि अगर मेरे पास 10 लाख हों तो मैं क्या करूँगा और उमर के पास 10 लाख हों तो वो क्या करेगा टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस. तो आज के लिए हम माइंड योर बिजनेस का ये एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दैट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज एंड अ न्यू चैलेंज, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम होम. फैंटास्टिक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.